हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट चैप्टर. Chapter name is web browser of unit 3rd. So student, in this chapter we have learned about web browser. So student, first of all we have discussed what is the content of this chapter. So let's see what is the content of this chapter. First one is web browser. So student, first of all we have discussed about web browser. Second one is features of web browser, means how many functions and features involved in web browser. Third point is functions of web browser, कि how many function do perform by web browser, okay, web server. Fourth one is how web browser work, that means कि web browser कैसे work करता है. Fifth one is some examples of web browsers, okay, like Chrome, okay, Opera Mini and whatever. Sixth one is different web browser settings, that means web browser में कौन कौन सी settings होती हैं, home page, bookmarks, cookies वगैरह and so on. Seventh one is add-ons or extension, this is a new features. Eighth one is plugins, that means plugins कैसे use करते हैं. Ninth one is difference between add-ons and plugins, so this is a main difference, for it is very much important for exam point of view. 10th one is cookies, so cookies is most IMP topic, okay. So student, these are the total number of topic of this chapter, that is 10. So we have learned step by step. So let's see. So what is web browser? A browser, short for web browser, it is a software application that is used to search for, reach and explore websites. So student, web browser एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, ओके. The primary function of a web browser is to render HTML code, the code used to design and mark up web page. Each time a web browser load a web page received from web server, okay, that means हर एक टाइम पर वेब ब्राउज़र पर वेब पेज को रिसीव कराने के लिए वेब सर्वर पर लोड होता है. इट इज़ प्रोसेस द HTML which may include text, link, reference to images and other items, ओके. सो जो वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है, वो HTML लैंग्वेजेस में बना होता है, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट, लिंक्स एंड रेफरेंस इमेजेस एंड सच आइटम्स, CSS, स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं. उन सभी को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है. द ब्राउज़र प्रोसेस दीज आइटम्स दैन रेंडर दैम इन द ब्राउज़र विंडो. दैट मीन्स जब हम इस किसी वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं कि www.facebook.com, सो वो उस वेब सर्वर पर जाकर उस वेबसाइट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट आस्क करता है उसके रिगार्डिंग वो उसमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर. नेक्स्ट वन इज बेसिक फीचर्स ऑफ गुड वेब ब्राउज़र, मीन्स कितने कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक अच्छे वेब ब्राउज़र में. फर्स्ट वन इज स्पीड. A browser should be able to quickly load web page including multimedia files, no matter how dynamic the content. Nowadays, images and videos dominate online platforms which require too much data to be processed. That means first जो features होना चाहिए एक अच्छे वेब ब्राउज़र में वो है स्पीड, क्योंकि बहुत सारी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, चाहे वो डायनामिक हो चाहे स्टैटिक्स हो, ओके. बहुत सारी इमेजेस फाइल्स होती हैं, तो जितना वेब ब्राउज़र आपका जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा ये उसका एक फीचर्स होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी. अ ब्राउज़र शुड हैव इजी एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस. जो वेब ब्राउज़र होता है उसका जो इंटरफेस यूज़र इंटरफेस होगा वो सिंपल होना चाहिए. द यूज़र इंटरफेस शुड नॉट टेक अप लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस विच वुड बी बेटर यूज फॉर कंटेंट दैट यूज़र इज ट्राइंग टू कंज्यूम, ओके. दैट मीन्स कि जो ब्राउज़र की जो ओपन विंडो होती है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. थर्ड वन इज सिक्योरिटी. ब्राउज़र शुड ऑल्सो be very secure as there are number of security threat available on internet which can lead to serious data breach and leakage. तो आपका जो वेब ब्राउज़र कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं लाइक क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सारे सिक्योर वेब ब्राउज़र हैं. बट जो इंटरनेट पे जो थ्रेटिंग चलती है, हैकिंग चलती है, उससे वो हमारे डेटा को बचाने के लिए
जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें एक सारी जो फंक्शंस होना चाहिए कि हमारे डेटा कोई लीक ना हो। नेक्स्ट, मेजर फंक्शन ऑफ अ टाइपिकल वेब ब्राउज़र। फर्स्ट वन इज सेंड एंड रिसीव इंटरनेट रिसोर्सेज। जो पहला फंक्शन है वेब ब्राउज़र का कि जो इंटरनेट रिसोर्सेज हैं उनको सेंड करना और रिसीव करना। एक्सेस वेब पेजेस, रेंडर एंड डिस्प्ले दैम। दैट मीन्स जो वेब पेज या वेबसाइट हमने एक्सेस करना चाहे www.facebook.com, तो उसके जो रिलेटेड वेब पेज हैं उसको हमें एक्सेस करने की परमिशन वेब ब्राउज़र देता है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट एंड सेव आवर फेवरेट पेजेस। दीज आर द मेन फंक्शन, जिसको आप बुक मार्क बोलते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट, ओके, वेब ब्राउज़र प्रोवाइड प्रिंट फंक्शंस। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आवर एक्टिविटी, दैट मीन्स हम वेब ब्राउज़र में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं पर डे, सो उसका रिकॉर्ड्स रखने का जो फंक्शन है वो वेब ब्राउज़र का है। स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड। इंस्टॉल एप्लीकेशन, दैट मीन्स बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो थर्ड पार्टी और गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, जबकि ब्राउज़र से करते हैं तो वो परमिशन नहीं मांगता, ओके, जबकि गूगल प्ले से थर्ड पार्टी के लिए आप वैलिड नहीं होते हैं। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वेब ब्राउज़र वर्क। दैट मीन्स जो वेब ब्राउज़र वो वर्क कैसे करता है। तो स्टूडेंट आप डायग्राम में देख रहे हैं जो यूजर इंटरफेस है, ओके, जो ब्राउज़र इंजन आपको दिख रहा है, गूगल क्रोम जैसे ओपन किया आपने, ओके, फिर आपने उसमें वेबसाइट के लिए कोई भी वेबसाइट इनपुट दिया www.facebook.com, तो नेटवर्किंग लेयर्स में जाएगा, देन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर में जाएगा, देन यूआई यूज़र इंटरफेस बैकएंड टेक्नोलॉजी में जाएगा। देन उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा परसिस्टेंट होगा, उसमें जो भी आपने डेटा को यूज़ किया है, ओके, एंड देन उसके बाद आपका जो आउटपुट दिखने लगेगा स्क्रीन पर। तो फर्स्ट वन इज यूज़र इंटरफेस, स्पेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द ब्राउज़र। यूज़र इंटरफेस का मतलब है वो स्पेस जहाँ पे यूज़र अपने ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर सके। सेकंड वन इज ब्राउज़र इंजन। ब्राउज़र इंजन का काम क्या होता है, इट क्वेरीज एंड मैनिपुलेट द रेंडरिंग इंजन। दैट मीन्स आपने कोई भी वेबसाइट को वहाँ पे एंटर कराया तो ब्राउज़र इंजन का काम है। थर्ड वन इज रेंडरिंग इंजन, इट इंटरप्रेट द HTML XML डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस एज पर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड डिस्प्ले इट। नेटवर्किंग, हैंडल ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी यूजिंग HTTP और FTP। जो नेटवर्किंग का काम है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं सबसे आगे लिखा रहता है HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर ये नहीं होगा तो आपका कभी रिस्पॉन्स आएगा नहीं सर्वर से, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, interprets and execute the JavaScript code embedded in website, okay, वेबसाइट में JS इंटरप्रेटर होता है और CSS की कुछ फाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। UI backend for drawing basic widget like combo box and Windows etc, this is a UI backend technology। डेटा स्टोरेज, इट मैनेज यूज़र डेटा सच एज कैश, कुकीज, बुक मार्क्स एंड वॉट एवर। सो जो जैसे हमने कोई भी चीज़ को इन्फॉर्म मतलब कि सर्च आउट किया, एक्सेस करना चाहे, वो सारी चीज़ें आप वेब ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके बुक मार्क्स या रिसेंट हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। सो उस टाइप डेटा को वो स्टोर करके रखता है। commonly used web browser, then that means nowadays we can use Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer and whatever. So first we have discussed Google Chrome. Google has developed Google Chrome web browser, okay, जो Google कंपनी है और उसने Google Chrome को डेवलप किया था। It is an open and free source because it is available on internet freely. It run on different operating system, okay, like Microsoft Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux, Android and iOS, and even all mobiles, okay। So स्टूडेंट इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। इट वॉज लॉन्च इन 2008, ओके, 2008 में लॉन्च हुआ था एंड सिंस दैन इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड मार्केट, ओके, और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला वेब ब्राउज़र है। Google Chrome is very strong in its application performance and JavaScript processing speeds, okay। ये Google जो Chrome है वो very strong है, सारे जो JavaScript based processing speeds होती है इसकी बहुत हाई होती है। It allow user to create local desktop
शॉर्टकट विच विल ओपन द डिजायर वेब पेज क्विकली एंड ईजिली। ओके, सो ये जो गूगल क्रोम एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि आप उसका शॉर्टकट्स बना सकते हैं, दैन कभी भी उसको क्विकली ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड ब्राउज़र दैट इज़ मोजिल्ला फायरफॉक्स। So this web browser is free and open, okay, developed by the Mozilla Corporation and Mozilla Foundation in 2002। ओके, जो Mozilla Firefox है वो 2002 में Mozilla Foundation और Mozilla Corporation ने इसको डेवलप किया था। इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इट वर्क्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओके नाउअडेज वी कैन यूज ऑन एंड्रॉयड एंड आईफोन ऑल्सो। Firefox features a pop-up blocker, anti-phishing and anti-malware warnings। ओके, जो Firefox फीचर्स हैं उसमें आप पॉपअप ब्लॉकर, एंटी फिशिंग एंड जो वायरस से बचने के लिए उसमें आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट ब्राउज़र दैट इज़ एप्पल सफारी। दिस वेब ब्राउज़र इज़ फ्री एंड क्लोज सोर्स। ओके, डेवलप बाय एप्पल कंपनी ने सफारी ब्राउज़र को बनाया। इट वर्क्स ऑन OS, iOS and Microsoft Windows operating system. Its market launch in 2003. Safari is not work on Android. Work on WebKit to render graphics and run JavaScript. Safari is faster and more energy efficient than other browser. Safari is a more powerful and faster as compared to other web browser. Fourth one is Internet Explorer. This web browser was developed by Microsoft Corporation. इंटीग्रेट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल इट्स वर्जन। दैट मीन्स जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी इनबिल्ड आता है। ओके, जैसे हमने कोई विंडोज़ को फॉर्मेट करके इंस्टॉल किया, ओके, कोई भी हमने विंडोज़ उसमें अप्लाइड किया, इंस्टॉल किया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको ऑलरेडी मिलेगा वहाँ। इट वॉज लॉन्च इन 1995। इट इज़ अ ओल्ड ब्राउज़र and was the most popular web browser until it was moved by Google Chrome in 2011। 2011 के पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र। इट सपोर्ट्स एडवांस इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड पावर सेविंग फीचर्स। ओके, इसमें जो सिक्योरिटी बहुत ही बोला जाए तो स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट लास्ट ब्राउज़र दैट इज़ ओपेरा मिनी। Opera is a web browser developed by company Opera Software। ओके, Opera ब्राउज़र को Opera Software कंपनी ने डेवलप किया है। इट इज़ compatible with Microsoft Windows macOS operating system mainly, although it also works in older version on Linux। Okay, it is also work on Linux, Mac and Windows। Okay, it was launched in 1995। It is also old browser। Okay, it provide integrate ad blocker faster with Opera Turbo sidebar extension of multitask। It is a multitasking web browser। Okay, it is also old browser but जो गूगल क्रोम आने के बाद सबसे जो पॉपुलर ब्राउज़र माना गया वो गूगल क्रोम है। ओके, इसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, दैन उसके बाद ओपेरा मिनी था, बट नाउ डेज गूगल क्रोम इज़ द मेन एंड फास्ट एंड सेफ वेब ब्राउज़र। Now we discuss browser settings। So first discuss for Google Chrome। First one is no more notification request। Okay, अगर हमें notification request नहीं चाहिए तो आप सेटिंग में जाकर उस कंटेंट में नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग दैट इज गेट अराउंड एड ब्लॉकर ब्लॉकिंग। दैट मीन्स अगर हमें एड्स को वहाँ पे ब्लॉक करना है तो जावा स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। फॉन्ट एंड साइजिंग, आप गूगल क्रोम की सेटिंग में जाके फॉन्ट को चेंजेस कर सकते हैं। रिव्यू और पासवर्ड, दैट मीन्स आपको पासवर्ड सेव करना है नहीं करना है वो आप सेटिंग में जाके अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमाइज स्टार्टअप पेज, दैट मीन्स हमें फर्स्ट पेज होम पेज चाहिए ओके या नहीं चाहिए, इट्स डिपेंड्स ऑन गूगल क्रोम सेटिंग। सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट मीन्स आप लोकेशन को ऑन ऑफ करना चाहें। ये सारी सेटिंग्स आप सभी लोग जानते होंगे। सेट फ्लैश टू आस्क फास्ट ओके। माइक एंड कैमरा एक्सेस, आप सारी परमिशन देना चाहते हो गूगल ब्राउज़र के लिए या गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए या फिर नहीं देना चाहिए ओके। दीज आर दी सेटिंग्स अवेलेबल ऑन ऑल दिस ब्राउज़र। सेंड रिपोर्ट टू गूगल ओके, दैट मीन्स सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन होता है, तो आप जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं वो टाइम टू टाइम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं ओके। रीसेटिंग क्रोम टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग,
If we ever break Chrome by accident and want to be reset everything, it is super easy. Scroll to the bottom of setting and click advanced. अगर जैसे आपका गूगल क्रोम क्रैश हो गया, आपको सारी चीज़ें वापस चाहिए या फिर वापस आपको रीसेट करना है, तो आप एडवांस सेटिंग पर जाके ओके रीसेट सेटिंग में जाके क्लिक रीस्टोर पे जाएंगे, देन उसके बाद आप रीसेट सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें फिर से अवेलेबल हो जाएंगी. ओके, सो दीज आर दी सेटिंग्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन अदर ब्राउजर्स लाइक मोजिला फायरफॉक्स, Internet Explorer. Okay, Internet Explorer also have these type of settings, Opera browser. Okay, so now we discuss next topic, that is add-ons and extension. Add-ons are tools which integrate into our browser. They are similar to regular apps or programs but only run when the browser run. Okay, add-ons जो सॉफ्टवेयर होता है वो बाकी की जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम होते हैं उन्हीं की तरह काम करता है, बट एक कब रन होता है, जब ब्राउज़र आपका वर्किंग कंडीशन में. एडवांस कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट. ओके, दैट मीन्स जैसे हम किसी भी जैसे मान लो हम फेसबुक चला रहे हैं, ओके, तो जो गूगल हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से स्टूडेंट जो भी आप सबसे ज़्यादा सर्च आउट करते हो उसी के बिहाफ में आपको ऐड देखने मिलते हैं आपको स्क्रीन पे. ओके, सो देयर आर टू की वेज इन विच एड ऑन्स बिकम इंस्टॉल. सो देयर आर टू टाइप्स. ओके, दो रास्ते हैं एड ऑन्स को अप्लाई करने के. थ्रू एन एक्सटर्नल इंस्टॉलर एंड थ्रू द ब्राउजर ऑन एड ऑन सर्विस. ओके, ब्राउजर में आप एड ऑन सर्विस को ऑन कर सकते हैं. देन उसके बाद द एड ऑन सर्विस इज द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ इंस्टॉलिंग एन एड ऑन, with the browser service providing a relative vetting process for the general safety of add-ons. Outside program can also install add-ons in browser is a part of separate installation process. In web browser as a part of separate installation process, Microsoft Office for example may place an add-on which is speed up in the browser opening of the Office document. So add-ons means आप जितने भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो एड-ऑन्स की हेल्प से आप कर सकते हैं. स्टूडेंट जैसे आपने एड-ऑन्स के लिए इंस्टॉल किया आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं. सो एड-ऑन्स कैन बी रिमूव इन वन ऑफ टू वेज. सम एड-ऑन्स particularly ones installed outside of the browser create an entry in the program portion of the control panel. ओके, सो आप कंट्रोल पैनल में जाके एड-ऑन्स को रिमूव कर सकते हैं. रिमूविंग दिस इज डन वन द सेम वे वी अनइंस्टॉल एनी अदर प्रोग्राम. सो आप जैसे कंट्रोल पैनल में जाते हो वहाँ से किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हो, सेम दिस कंडीशंस. ओके, सो हम एड-ऑन्स के लिए रिमूव इजली कर सकते हैं. दीज आर दी एड-ऑन्स मैनेजर. ओके, इन वेब ब्राउज़र. गूगल क्रोम के लिए आप मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे एड-ऑन्स मैनेजर के आप अप्लाई कर सकते हो. फायरफॉक्स में आप एड-ऑन्स ऑप्शंस या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कैपिटल ए, सो आप मोजिला फायरफॉक्स में एड-ऑन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर मैनेज एड-ऑन्स का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है. ओपेरा में आप ओपेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, एड-ऑन्स का उसमें आप पेजेस ओपन करेंगे, देन एक्सटेंशन वाला पेजेस जो ओपन होगा उसके थ्रू आप एड-ऑन्स को उसमें अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स. प्लगइन्स इज अ कंप्लीट प्रोग्राम. ओके, जो प्लगइन्स होता है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है. एज कंपेयर एड ऑन इज नॉट अ प्रोग्राम. सेकेंड वन इज फॉर एग्जाम्पल फ्लैश इज अ प्लगइन मेड बाय द एडोब. ओके, जो फ्लैश सॉफ्टवेयर है वो एडोब ने उसके लिए क्या किया है, अप्लाई किया है. इट इज़ टू प्ले अ वीडियो इन फ्लैश प्लेयर. ओके, also Java is a plugin made by the Sun Microsystem which is used to run program based on Java. Okay, so these are the platforms. Okay, plugins is not bounded for browser only. Okay, ये केवल ब्राउज़र के लिए नहीं होता. Flash can be installed in computer to play Flash files. Flash का यूज़ हम जैसे मेरे पास जो फ्लैश प्लगइन्स हैं उसका यूज़ करते हैं फ्लैश फाइल को रन करने के लिए. जैसे हमारे पास अगर कोई भी वीडियो है तो वीडियो चलाने के लिए मेरे पास वीडियो व्यूअर होना चाहिए. ओके, सिमिलरली जावा कैन बी इंस्टॉल टू रन जावा फाइल्स. जावा का यूज़ हम कहाँ करते हैं जब हमें जावा फाइल का यूज़ करना पड़ता है. जावा फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें जावा प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड एड-ऑन्स इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम. इट इज़ यूज टू ऐड अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी टू अ ब्राउज़र. ब्राउज़र में कोई अलग से फंक्शनलिटी को हमें ऐड करना है तो हम एड-ऑन्स का यूज़ करेंगे. इफ़ वी सपोज टू इंस्टॉल एड-ऑन ऑन अदर वर्क एनवायरनमेंट, से
web operating system we can't do it. It means add-ons are limited to a certain boundaries. जो add-ons होता है वो एक बाउंड्री में रह के वर्क करता है, जबकि जो plugins होता है वो वर्क करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स आपको अगर जावा की फाइल को एक्सेस करना है तो आपको जावा प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ेगा. इवन आपको फ्लैश प्लेयर में आपको वीडियो चलाना है तो आपको फ्लैश प्लगइन्स का इंस्टॉलेशन देना होगा. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स. Next topic is cookies. Are a small bit of data stored as text file on a browser. तो cookies एक small bits की data storage files होती है, text files होती हैं जो browser में store रहती हैं. Websites use those small bits of data to keep track of user and enable user specific. Okay, so what is in a cookies? मतलब क्या होता है cookies में? Each cookies is effectively a small lookup table containing pairs of key and data values. Okay. Once the cookies has been read by the code on the server or client computer, उसमें कोड एग्जिस्ट रहता है. The data can be retrieved and used to customize the web page appropriately features. That means cookies का आप यूज़ कभी भी कर सकते हैं. ओके, cookies को सेव भी कर सकते हैं कभी भी आपको अगर उस डेटा को इन फ्यूचर आपको एक्सेस करना है. सपोज वी वांट टू हैव अ काउंटर फॉर अ वेब पेज टू एक्सेस इट 3 times only. This value can be stored over user computer. At first attempt it will be 1, then 2, then 3. Next time server will not allow to. That means cookies एक नंबर की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेबसाइट को ब्राउज़र की सेटिंग में जाके कुकीज़ में एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया कि मेरे को ये 3 से ज़्यादा बार आपको इसमें पासवर्ड नहीं लेना, अगर 3 बार रॉन्ग करे तो लॉक कर दें. सो दैट मीन्स कि 3 एक्सेस अलाउ करना. सो दैट टाइप ऑफ वर्क दैट इज डन बाय कुकीज़. व्हेन आर कुकीज़ क्रिएटेड मीन्स कुकीज़ कब क्रिएट होती हैं. राइटिंग डेटा टू अ कुकीज़ is usually done when a new web page is loaded with code to create cookies. दैट मीन्स जब भी आप वेब पेज को लोड करते हैं नए वाले वेब पेजेस को तो वहाँ पे एक कुकीज़ जनरेट हो जाती हैं. ओके, सो हम कुकीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं. कुकीज़ आर ईजीएस्ट वे टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेशन ऑन अ वेबसाइट टू द अनदर और बिटवीन सेशन ऑन रिलेटेड टू वेबसाइट. दैट मीन्स कुकीज़ का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि एक सेशन में हम इन्फॉर्मेशन को ईजी वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं. Next is how long does a cookies last? The time of expiry of cookies can be set through using server-side scripting language. When the cookies is created by default, the cookies is destroyed when the current browser window is closed. That means cookies जब lost हो जाती है जब आपका जो browser window है वो पूरे तरीके से closed हो जाता है. But it can be made to persist for arbitrary length of the time after that. That means उसमें कुछ time limitations होती है कि 15 days बाद cookies अपने आप डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ रहेगी. सो दैट मीन्स कि एक टाइम इंटरवल. ओके, तो आप जितना भी उसमें टाइम प्रोवाइड करेंगे कुकीज़ आपकी जब तक सेव रहेगी, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, हाउ सिक्योर आर कुकीज़. कुकीज़ आर नॉट अ थ्रेट टू प्राइवेसी. ओके, प्राइवेसी के लिए कुकीज़ कोई हार्मफुल नहीं है. सिंस दे कैन ओनली बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट द यूज़र हैज वॉलंटियर और दैट द वेब सर्वर ऑलरेडी हैज़. ओके, दैट मीन्स एक कुकीज़ तो सिक्योर ही है. ओके, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो भी यूज़र वेब ब्राउज़र पर जाकर किसी भी चीज़ को सर्च करता है. तो दिस इज़ कॉल्ड कुकीज़. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज़ द चैप्टर वेब ब्राउज़र विल बी फिनिश्ड एंड नेक्स्ट ऑन वी विल start new units. Okay, that is unit number 4. Okay, this is a new units for class 12th student. Okay, thank you so much.